enough to have such learned speaker of today's session. अपने कोई भी कार्य के लिए हो और स्पेशली जेएसडी के लिए प्रीतम भाई का जो डेडिकेशन है, अगर उसको मुझे 4 लाइनें में कहना है तो यही कहना चाहूंगा। दिल की हर बात समझ जाया करते हैं, जेएसडी के हर कार्यक्रम में साथ हुआ करते हैं। प्रीतम भाई तो मिला करते हैं तकदीर वालों को, मिली ऐसी तकदीर हमको हर बार, यही दुआ करते हैं। उनका जो सरलता से बड़ी या छोटी छोटी बातों को समझाने का तरीका है, बड़े ही लाजवाब है। आज के इस सेशन के बाद आप सभी को पता ही चल जाएगा। उनके अंदाजे बयान के लिए कहना चाहूंगा, अपनापन झलकता है जिनकी बातों में, सिर्फ कुछ ही होते हैं लाखों में। थैंक यू प्रीतम भाई फॉर बीइंग द कोर फॉर दिस वंडरफुल and unique program. With the help of Ketan Bhai, JSG Gulbarga is honored to have today's the guest of honor, Mrs. Divyaji Rathod, Chairperson Cricket Committee, Maharashtra Region, and Mrs. Chanchalji Kucheria, Chairperson Overseas Tour Committee, Maharashtra Region. Special thanks to guest of honor for sparing their valuable time for this session. Special thanks to Akshay Abhijit Shah for supporting all the technical aspects of this program. Before handing over the session to the renowned speaker, I would finish my welcome speech by this line: जो झुककर अभिवंदन करता है, वो भले ही पद में आपसे छोटा हो, किंतु संस्कारों में उससे बड़ा होता है। पद तो बहुत को बड़े बड़े मिल जाते हैं, पर अच्छे संस्कार सभी को नहीं मिलते। यही आज जेएसजी की छोटी सी कोशिश है। सभी को फिर से वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स सुनील, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। अभी आज हमारे बीच हमारे प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर है मिसेस दिव्याजी राठौड़, चेयरपर्सन क्रिकेट कमेटी महाराष्ट्र रीजन, और मिसेस चांचल जी कुचेरिया, चेयरपर्सन ओवरसीज टूर कमेटी। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं मास्टर यश राजदीप आचार्य को निवेदन करता हूं कि वह आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस दिव्याजी राठौड़ का इंट्रोडक्शन दे। Yes, ji. Good evening, everyone. I'm Yash Rajdeep Panchalia. I'm going to introduce today's guest of honor, Mrs. Divya Sachin Rathod. She was born on 12th December 1982 at Kolhapur and is the daughter of Raju Vanechand Kataria. She is a professional anchor of all social and corporate events. She was the first lady founder of JSG Pune Platinum and is currently the president of JSG Pune Platinum Ladies Wing. At Pune Zone, she is an award committee chairman of MRC Ladies Cricket since 3 years. She also worked with Pune Zone as a cricket coordinator for 3 years. On behalf of Jain Social Group Gulbarga, I welcome you wholeheartedly to this wonderful session, ma'am. Thank you. Thanks, Yash beta. It's really our honor to have you with us today, madam. Now I request Rutvi Pritam Mehta to introduce our next chief guest of honor, Mrs. Chanchalji Kucheria ji. Chanchalji. Today I am going to introduce our guest of honor, Chanchal Kucheria ji. She is Vice President of Pune Zone and Overseas Committee Chairman, MRC. She completed her studies in MBA DTL and Master in Psychology. By profession, now she is a psychology counselor. She has also been awarded as Mrs. Pune in 2008, Midcon Udyogini, Pratibhavanta Nari, Adarsh Mahila Puraskar, Best Mom by Lokmat in whole Maharashtra, and also been part of many TV serials like Darshan, Wheel Smart Shrimati, Family Number 1. Last but not the least, she is also a very nice blogger as well as poet. I would like to thank JSG for giving me this opportunity to introduce our guest of honor. Thank you. Thanks, Rutvi beta. It's a pleasure to have you with us, madam. Now I request our guest of honor, Mrs. Divyaji Rathod, to say a few words. Mrs. Divyaji Rathod.
सभी को जय जिनेंद्र। Can you hear my voice? Yeah. Is the voice clear? Yes, madam. It's clear. It's clear. Okay. सभी को मेरा जय जिनेंद्र। धरती हमें सहना सिखाती है, सरिता हमें बहना सिखाती है, लेकिन जीएसटी फॉर्म है जो हम सबको आगे बढ़ना सिखाती है। बस उसी तरह ऐसे ही सफलता के सफर पे आगे बढ़ रहा है हमारा ऐतिहासिक सिटी जीएसटी गुलबर्गा। जीएसटी गुलबर्गा एक ऐसा बरगद है जो खान पान का बहुत शौकीन है। वहाँ के मैं जैसे जीएसटी को काफी लोगों से परिचित नहीं हुआ, जितना जानती हूँ वहाँ का जो लोगों की जो मिठास है और जो एक्टिवनेस है, वहाँ का उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्यारा है। जब केतन भाई और सुनील जी से मेरी बात हुई इस कार्यक्रम की बारे में, तो मुझे एक सुन के बहुत अच्छा लगा कि जीएसटी गुलबर्गा एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, और इस कार्यक्रम को जो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा ही अनोखा सा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। एंड आई एम श्योर दैट जो पीछे जो आपके कार्यकाल आप सभी के प्रेसिडेंट्स के रहे हैं, उतना ही शानदार, उतना ही उमंगदार और उतना ही पावरफुल आपका ये कार्यकाल रहने वाला है सुनील जी। Hello, Divya ji. We are unable to hear you. Hello. I think there is some problem with the net. Yeah, let's go ahead. We'll join her later on. Program, sir. Then once she joins back, we can take her back again. Yeah, there's some problem with the net of Mrs. Divya ji. We'll get back to her as soon as she gets back with us. Thank you, Divya ji, for your words. Now I ask Mr. Master Parshva Mahavir Singhvi to introduce Pritam Mehta. Mr. Parsh. मेरा क्यों लेके बैठे, मेरा माइक चलो। Hello everyone, Jai Jinendra and Pranam to all my elders. On this beautiful Sunday evening with drizzles of rain, hold a cup of tea, sit back on your couch, hold your devices in your hands and enjoy this informative, though interesting session of learning table manners and dining etiquettes right on your table by our very own Pritam Ji Mehta. Myself, Parshva Mahavir Ji Singhvi, here to introduce you to today's young, talented and dynamic speaker, Shri Pritam Ji Mehta. Shri Pritam Ji Mehta was born on 25th of October 1977 in Solapur, Maharashtra. After getting primary education from Gulbarga and Bachelor's of Engineering in Electrical and Electronics, Shri Pritam Ji Mehta worked as a software engineer in Mumbai for around 10 years. In the software field, he has implemented very large projects across the globe successfully. He later joined SRN Mehta School as managing director and since then has reached new heights. He has mastered the art of administration and has implemented various new technologies to improve the quality of education and the school. The school has over 4,000 students and is ranked the most emerging school by Brainfeed magazine. Hope you enjoyed the session and have a great day. Thank you, Parshu Beta. We will hear we will hear some words from our another guest of honor, Mrs. Chanchal ji, after the session of Pritam Mehta. तो आज के प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छोड़ देती है। यह छोटी छोटी आदतें ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इन शब्दों का
डिशेस के हमारी जिंदगी को लेकर देखने का खुशी में प्यार, दोस्त, परिवार या न्यूट्रिशन हमें अपने आप मिल जाएंगे। आजकल सब कुछ ग्लोबल होते जा रहा है, बच्चों की दुनिया भी बड़ी होती जा रही है। तो अक्सर क्या होता है, हमें टैलेंट तो होता है और प्रेजेंट करने को नहीं आता, या देश विदेश की संस्कृति, उसके टेबल मैनर्स का नॉलेज नहीं होता। तो इस ग्लोबल दुनिया में हम यह बच्चे हिचकिचाहट हो जाते हैं। तो इसी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आज हमने छोटी छोटी बातें से टेबल मैनर्स एंड डाइनिंग एटिकेट्स से रूबरू कराएंगे। और यह सेशन में जानकारी देने के हमारे सबसे चहेते वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी मिस्टर प्रीतम मेहता। अब इनका इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी पार्श ने कर दिया है, सिर्फ प्रीतम का नाम ही काफी है, जिसे सारा गुलबर्गा अब एजुकेशन वर्ल्ड जानता है। यह SRN स्कूल गुलबर्गा के मैनेजिंग डायरेक्टर है और वेरी टैलेंटेड, डेडिकेटेड, हेल्पफुल, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी हम्बल पर्सनालिटी ऑफ गुलबर्गा जैन समाज। बच्चों को अपना बेस्ट सिखाने में यह माहिर है। तो मैं प्रीतम मेहता को यह सेशन शुरुआत करने की रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद अभिजीत भैया, सुनील भैया। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Yes. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये प्रोग्राम हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रखेंगे। मैं आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो ये भी चेक करना चाहूँगा, और क्या क्या खाओगे, कैसे खाओगे, इसको भी देखेंगे, और हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज वेयर हम अपने इस कार्यक्रम में व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम कार्यक्रम के साथ में थोड़ा देर एक दो स्लाइड भी दिखाऊंगा, दो तीन चीजें प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाऊंगा। तो तभी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ये अपना जो है पर्पस सर्व होगा। सो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन केयरफुली एंड लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू वी मीन बाय एटिकेट्स? सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे आज का अपना एजेंडा क्या होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आज हम एटिकेट्स के बारे में सीखेंगे, आप कार में कैसे बैठोगे, उतरोगे, उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे टेलीफोन एटिकेट्स, फिर किस तरह से शेक हैंड करना है वो देखेंगे, नैपकिन्स का इस्तेमाल कैसे करना है उसको देखेंगे। फिर अलग अलग जो खाना होता है, सूप हो गया, फोर्क एंड नाइफ हो गया, अलग अलग जूसेस हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, उन्हें किस तरह से लिया जाता है। फिर नूडल्स कैसे खाया जाए, टी बैग्स के साथ में चाय कैसे पी जाए, उसके बाद में डेजर्ट जो होता है उसे कैसे खाया जाए, एंड देन लास्ट में खाना अगर कुछ अटक जाता है टूथपिक का इस्तेमाल। और उसके बाद में हम देखेंगे जो मेजर कॉमन मिस्टेक्स सभी लोग करते हैं। तो इन सब चीजों को हम गौर से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। First, let us understand what is etiquettes. Etiquette is nothing but it is a process where it helps an individual to understand how to behave in a social environment. अगर आप कहीं समाज में हो, किसी चार लोगों के साथ में हो, तो आपका बर्ताव किस तरह से होना चाहिए ताकि आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को कुछ तकलीफ ना हो। ये ही होता है एटिकेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एटिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ये आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके लिए हमारे यहाँ पे कई बार हम इसको निगलेक्ट करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके लाइफ में जब आप ऊपर चढ़ते हैं, आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और बड़े वातावरण में बहुत सारे लोगों के बीच जब आते हैं, हर छोटी छोटी चीज आपकी ऑब्जर्व की जाती है और उसके ऊपर टिप्पणियां हो जाती हैं। तो इन सब के शिकार आप ना हो, इन सब से आप अच्छी तरह से निपट पाएं, इसीलिए ये कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ
what is further and the best way to create a very good first impression. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कार में कैसे चढ़ते हैं. अभी किसी भी कार्यक्रम को जाने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी या कार के थ्रू ही जाते हैं. तो इसीलिए हमने सोचा कि वे पहले ये समझ लें कि गाड़ी को कैसे इस्तेमाल किया जाए या कार को कैसे देखा जाए. अगर सब आपके साथ में कोई एल्डरली पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या कोई बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहला एक गेस्चर होना चाहिए कि आप उनके लिए दरवाजा खोलें और उनके लिए सबसे पहले सीट दे दें और फिर आप बैठें. तो ये एक तरीका है आपका रिस्पेक्ट दिखाने का. देन कम्स, फिर जब आप गाड़ी में बैठोगे तो किस तरह से बैठना होता है ये हम एक छोटे से वीडियो के जरिए देखेंगे. सो लेट मी शो यू दिस वीडियो. और फिर दरवाजा भी कैसे बंद करना है इसको भी हम देखेंगे. तो चलिए देखते हैं अभी गाड़ी में सही तरीके से कैसे बैठा जाए. धीरे से दरवाजा खोलिए. पहले अपने आप को अंदर रखिए, फिर दोनों पैर को एक दूसरे से डस्ट कीजिए ताकि मिट्टी नीचे गिर जाए और फिर पैरों को अंदर घुमाइए. अब दरवाजा भी आगे तक लाके थोड़ा ही जोर लगा के उसको बंद कीजिए. अब हम एक बार थोड़ा सा देखेंगे. एक छोटी चीज है बट मायने रखती है. ओपन करके धीरे से आगे तक लेकर आएंगे और सिर्फ छोटी डिस्टेंस में ही थोड़ा सा पुश कर लेंगे. इतना ही सॉफ्ट टच में काम चल जाता है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग इतना एक्साइटेड होते हैं या इतनी जोर से दरवाजा बंद करते हैं कि बाजू वाले दरवाजे से कोई बाहर गिर जाएगा. इतना भी जोर अच्छा नहीं होता है. एक जमाना जब एम्बेसडर कार होती थी या फिएट कार होती थी और उस समय बहुत जोर से दरवाजे लगाने पड़ते थे, बट अभी वो हिस्ट्री है. 25-30 साल हो गए. ऑल द व्हीकल्स नाउ आर विद सॉफ्ट टच. तो बहुत जेंटली दरवाजा बंद करना होता है. ये एक्चुअली जोर से दरवाजा बंद करना एक आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है. कई बार आप जब गुस्से में हो तो पटाख से जोर से कुछ कर देते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें ना ऑब्जर्वर के लिए बहुत मायने रखती है. तो नाउ विल गो फॉरवर्ड. टेलीफोन एटिकेट्स. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि टेलीफोन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. अभी देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम टेलीफोन पर बात करते हैं, ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें धीरे से बात करना चाहिए. आपकी जो बात हो रही है, आपके अड़ोस पड़ोस या आपके फेलो पैसेंजर्स अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उनको सुनाने की ज़रूरत नहीं है. घर पे फ़ोन किया, अच्छा बीवी ने बोला अच्छा जी क्या खाओगे घर पे, तो बोल दिया अच्छा जी पनीर बनाओ. अब पूरे मोहल्ले को तो पता नहीं चलना चाहिए कि पनीर बन रहा है. तो बात सिंपल होती है. छोटा सा आवाज़ रखिए और बात कीजिए. अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब आवाज़ सुन नहीं पाते हो, तो ये मेरे इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए. मैं 1 मिनट के लिए मेरा ये बंद कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी शोइंग यू हाउ टू यूज़ अ फोन. ओके. अब इसमें आप जब बात करते हैं थोड़ा सा आपका हाथ सामने रख के बात करेंगे ना, तो वॉइस आपके हाथ को लग के फ़ोन के अंदर जाता है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एंड सोफिस्टिकेटेड वे टू स्पीक. आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप आराम से बात कर सकते हो और आपके आजू बाजू में भी जो हैं उसमें भी किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है. आजकल कई जगह पर देखा जाता है लोग ऐसे रख के बात करते हैं, यूं रखते हैं, यूं रखते हैं. दिस इज नॉट अ गुड साइन. एक जेंटलमैन का तरीका होता है फोन सिस्टमैटिकली रख के बात करें, नॉर्मल टोन में बात करें, सामने उसको सुनाई देता है, और अगर ना सुनाई दे तो ऐसे हाथ रखें. अब इसमें एक छोटी चीज और भी मैं बताना चाहता हूं कि बात करते समय आप स्माइल करके बात कीजिए. भले ही फोन पे सामने वाला आदमी आपको नहीं देख सकता है, लेकिन आपकी आवाज से वो पहचान सकता है कि आप स्माइल करके बात कर रहे हो या गुस्से से बात कर रहे हो. उसके लिए जब कभी हम कुछ भी बात करते हैं तो हैव अ प्लेजेंट टोन एंड देन स्पीक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू डू सम सेल्स कॉल, या आप कभी किसी से बात करते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति से बात करते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप से एक आपका छाप छोड़ते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि फोन पे जब आप बात करते हैं तो जनरली पीपल लाइक टू बी एड्रेस्ड बाय देयर नेम. जैसा फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं तो यू कुड से हाँ हेलो मिस्टर मेहता, अच्छा आपने ये किया था, अच्छा अच्छा मुझे आपकी वो चीज़ अच्छी लगी थी, या हेलो मिस्टर लोढ़ा जी आप कैसे हैं. तो जब आप उन्हें अपने नाम से या सरनेम से संबोधित करते हैं तो दे फील मोर ऑनर्ड एंड मोर अटेंटिव. आप देखिए आप कहीं चल रहे हो, कोई बात कर रहे हो, आपका कोई नाम लेता है तो आप फटाक से मुड़ के देखते हो कि अरे भैया क्या कौन है, क्या कर रहे हैं. तो इस तरह से
ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, आपके बातों का वजन बढ़ जाता है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग। आई होप एवरीवन इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा सा एक अपना हैंडशेक कीजिए, अपने जगह बैठे बैठे जगह पर ही आप आपका हाथ हिलाएंगे तो मैं इधर सबको देख सकता हूं। ओके, तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक दैट, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अपने पास जो हम अभी देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द नेक्स्ट आइटम, एंड दैट इज ग्रीटिंग, सीटिंग एंड गेस्चर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें हम सबसे पहले कहीं पर भी जाते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैंडशेक की कहानी कैसे शुरू हुई और इसका महत्व क्या है। तो लेट्स लुक एट इट और देखते हैं। ये बात जो है ग्रीटिंग्स मतलब हैंडशेक करने की प्रथा 5वीं शताब्दी से शुरू हुई है, 5th सेंचुरी बीसी। एक्चुअली क्या होता था, पहले जब आप हैंडशेक करते थे तो वो एक शांति का चिन्ह होता था। हैंडशेक का मतलब कोई वेपन्स नहीं है हमारे हाथ में, तो इसका मतलब ये एक शांति का संदेश है। अगर आप देखते हो तो इधर अगर आपको दिख रहा होगा कि ये 2-3 स्कल्पचर्स हैं जो पुरातन काल से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मिले हैं, और ये आर्कियोलॉजिकली साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि दिस हैज बीन स्टार्टेड ऑन 5th सेंचुरी, एंड ये एक शांति का प्रतीक माना जाता था। अब हम देखते हैं कि हैंडशेक किस तरह से किया जाए, and then let's do some trial of handshake. So I request Mr. Abhijit Shah to join me for this example. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा कैमरा आप ध्यान से देखिए और हैंडशेक करने के क्या क्या तरीके होते हैं और उनमें क्या होता है एग्जाम्पल, उसका प्लस माइनस, ये सभी चीज हम आपको दिखाएंगे। Just give me 1 minute. Yeah, there we are. Okay. So, देखिए जब भी हम मिलते हैं, फर्स्ट थिंग शेक हैंड करते समय हाथ कभी भी फर्म होना चाहिए एंड स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप इसको हिलाते हो ना, आपका कंधा नहीं हिलना चाहिए, बट ये एल्बो से हिलना चाहिए। दिस इज द राइट मेथड टू कन्वे शेक हैंड। और अपने यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, हम दोनों हाथ से करते हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन। A gentleman's way to do a shake hand is like this. आप फर्म रहिए और आंखों से आंखें मिलाइए और उनको वेलकम कीजिए। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। हेलो, वेलकम सर। अब एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि पर्सनालिटी कैसे डिपिक्ट होती है इसके ऊपर। जब आप शेक हैंड करते हो और अगर ऐसे करते हो तो इट शोज दैट यू आर अ डोमिनेटिंग पर्सन। अगर आप आपका हाथ ऊपर रखने जाते हो तो ये डोमिनेट होता है। सेम वे अगर आप ऐसे करोगे तो आपका कंट्रोल किसी के भी हाथ में दे देते हो, तो इसका ये भी एक मतलब होता है। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शेक हैंड करें एकदम फर्म होके करें। कई लोगों को देखा गया ऐसे करते हैं या चुप यूं मिलाते हैं, ये सब सही तरीका नहीं है शेक हैंड करने का। तो थैंक यू मिस्टर अभिजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि शेक हैंड कैसे करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट, okay, can I have the phone please? Okay, humming sound. AC. Okay, so let's go forward. Next slide is ओके। हैंडशेक जैसा भी मैंने दिखाया, फर्म और स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो को बेंड नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू लूज, एंड इट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स योर पर्सनालिटी। सो वी स्पोक अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्चर। जब भी हम टेबल पर बैठते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि, अब मैं आपको एक वीडियो पे जरा डेमो दिखाऊंगा। आइडियल पोजिशन इज ऑलवेज टू सिट स्ट्रेट लाइक दिस। कई बार हम देखते हैं कि लोग ऐसे बैठ जाते हैं, टेबल पे हाथ रखते हैं, यूं यूं करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आपको कभी भी जब भी आप होटल में जाएं या कहीं पर भी जाएं,
you have to sit like this. This is the correct way to sit and then carry out your discussion, dinner, या जो भी हो. So let's go forward now. The posture is done. Then we will look at okay. So can I request you all to practice once? एक बार आप आपकी जगह पर ही बैठ के ध्यान से उसको अच्छी तरह से बैठें. And now we will start about learning how to use a napkin. Okay. So अभी मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ. So let's see. अब ये मेरे पास मेरा napkin आया हुआ है. Generally a napkin is kept on the table. Okay. So सबसे पहला चीज होता है कि इस napkin को आप ओपन कीजिए and you put it on your laps. अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है, बड़ा नैपकिन भी हो सकता है. अगर बड़ा नैपकिन होगा तो आप इसको फोल्ड करें और ये जो फोल्डेड पोर्शन होता है उसको इस तरफ नीचे रखें. ये जो लूज एंड होते हैं ये आपके पास ऊपर रहना चाहिए. ये इसका सही तरीका होता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग नैपकिन. नैपकिन का पर्पस जो है आपको सिर्फ ऐसे डैब करने के लिए होता है, मुंह धोने के लिए या रगड़ने के लिए नहीं होता है. ये सबको समझ में आना चाहिए. इट इज जस्ट सिंपल dabbing, that's it. Okay, so now let's go to the next step and understand what is waiting for us. Let's understand the first step, that is how to, we have understood अभी napkin कैसे यूज करते हैं. अब इसमें एक और चीज ये भी होती है कि जब अगर आप खाना खाते समय कहीं कुछ कारणवश आप उठते हो तो इसका एक साइन होता है कि आपको आपका नैपकिन आपकी चेयर पर रख के जाना होता है. तो इसका मीनिंग ये होता है कि यू आर गोइंग टू कम बैक. तो वेटर को भी ये समझ में आता है कि ओके ही हैज जस्ट टेकन अ ब्रेक एंड ही हैज गॉन आउट. तो उसके लिए आपका नैपकिन आपके चेयर पे होना जरूरी है. नाउ अगर मान लीजिए आपका खाना हो जाता है, भोजन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में आपको आपका नैपकिन एक सिंपल मेथड में आपके राइट हैंड साइड पे रखना चाहिए. जब आप राइट हैंड साइड पर रखोगे इट मीन्स दैट यू आर डन विथ योर मील्स एंड द वेटर कैन टेक अवे योर प्लेट्स. एक चीज ध्यान रखिए, नैपकिन को बहुत ऐसे क्रश मत कीजिए. जनरली एक ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब क्रश करते हैं तो आदमी बहुत नर्वस होता है एंड दिस रिफ्लेक्ट्स दैट. सो वी हैव टू कीप इट इन अ प्रॉपर वे. जस्ट सिंपल रखिए बट कीप इट इन अ प्लेन वे. नाक वगैरह साफ नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट नैपकिन फॉर दैट. ओके, बट दिस इज जस्ट टू प्रिवेंट एनी फूड फॉलिंग ऑन योर ड्रेस एंड helps you to wash your hands or do some basic things. That is the purpose of the napkin. So चलिए आगे बढ़ते हैं. now let's एक बार can I request all of you to practice this putting up of the napkin on your laps. अगर जिस किसी ने भी ये तैयारी की है तो आई वुड सजेस्ट एक बार आप अपना डालकर देखिए जरूर किस तरह से ये दिखता है, किस तरह से ये रहता है. ओके, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सो ऑर्डर कैसे करते हैं. ऑर्डर करने के लिए भी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि नाम बड़े बड़े होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या चीज है, कैसे करना चाहिए, तो इसमें कोई बुरा फील करने की जरूरत नहीं है. अभी सिंपल, अब हम दाल बोलते हैं तो कोई उसको बहुत अच्छा डेकोरेटिव नाम देगा, येलो लिंटल विथ स्टीम्ड राइस एंड सम कोरिएंडर लीव्स ऑन इट. ये सिंपल है, दाल तड़का होता है. तो लोग अपने अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, बट हमें उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है या कुछ अचंबा होने की जरूरत नहीं है. एक सिंपल चीज होती है, आप कर्टियसली आपके वेटर को बुला सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि सर ये होता क्या है, इसमें क्या चीज डलती है, ये कैसे लगता है, और उसके ऊपर आप आपका ऑर्डर दे सकते हैं. एक चीज का ध्यान रखें, वेटर भी एक इंसान है, उसको भी आप उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए. इस तरह से कभी भी ना बुलाएं. उनको जस्ट कहें हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसे आप बुला सकते हैं. या वेटर कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज. इस तरह से जब आप बुलाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे एंड दे कैन कम एंड मीट यू एंड help you out for your requirements. Okay, so now let's look at the next thing about the plate setup. अब मैं आपको छोटा छोटा चीज बताना चाहता हूँ. जनरली एक मील में एक बड़ा प्लेट होता है and then we have a small quarter plate and then we have a soup bowl and a regular bowl. Okay,
So this is what is done, and just give me 1 second. Somebody is doing this annotations. मुझे इसको disable करना पड़ेगा. Just give me a minute. Mobile app में disable कर सकते हो. Just give me 1 minute, please. I will disable these annotations. Chalo, meanwhile, we'll just carry on with the program for a few minutes and then we'll get this disabled so that children, you are all good children. ऐसे मत कीजिए, बहुत अच्छी चीजें अभी आपको देखने मिलेंगी. Okay, so चलो आगे बढ़ते हैं. Now let us understand how do we drink our soup. Okay, तो अब हम चलते हैं. Let's see. Recording in progress. Just a second, please. Okay. 1 second. Okay, here we go. And let me just give me 1 second. Yeah. Okay, so 1 minute, please. Okay, so here we go. I hope now everybody is ready and is able to hear. Okay. Yeah. Okay. So there we go. Okay, so we were on this point of table setup. Now let us understand. Generally, a full course में we have a bigger size fork, एक small size का fork होता है, and then we have a butter knife, then we have a soup spoon, and we have a regular teaspoon. Okay, so this is what we have, and then now let's go forward. So this is the regular setup for the meal. एक प्लेट होती है, राइट साइड में नाइफ और स्पून होता है, लेफ्ट साइड में भी फोर्क होता है. दिस इज हाउ इट इज बीइंग केप्ट. ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. I think I just need a minute to disable this. Somebody is trying to bother. Just a minute, please. I will try to. Okay, I'll do it. 1 second. Just 1 minute. Annotation. Yeah, here you go. Disable annotation. Now nobody will be able to write on the screen. Okay, so let's go ahead. Okay, so we are all set. Now let's look at this table setup. We have a knife, and then we have this one. So let's go forward. Now let's start eating the soup. Okay, I'm going to stop sharing, and so we'll look at the soup setup, and then this is very important. There are two types of spoon. एक ये traditional spoon होता है, and you also have another type of a steel spoon which has got a bigger base. Okay, so soup drinking has got a skill. एक तरीका होता है. First of all, you have to dip it like this on this side, and then do it like this, and then have it in this way. Idea is जब आप इसको ऐसे करते हैं तो इसको जो नीचे लगा हुआ है, it will fall over here, and then you can drink it like this. I hope everyone is able to see this. Can you see that? Just raise your hands. Are you okay with this one?
Even if you have the other type of the spoon, same method has to be applied. Pick it up. So this is the way we just put it up like this, और इसको हम इधर से इसको ये करेंगे, and then this is how it is going to be. Okay, so this is a very simple way, but this is the right way to use the soup. Okay, fine. So let's go forward now. Okay, good. Okay, wonderful. I'm getting some good inputs that need to increase my voice a little bit. That's fine. I'm going to go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अभी हमने देखा सूप को कैसे लेते हैं. Now let us start the next step. अब आता है एक और important चीज. सूप पीते समय कई लोग मुंह से आवाज निकालते हैं ऐसे. This is a very very bad manners. जब आप सूप पी रहे हो, गरम भी होगा तो उसको फूंक कर पीजिए, बट देन डू नॉट स्लर्प व्हाइल यू आर ईटिंग द सूप. बाउल को कभी भी उठाकर पीना नहीं चाहिए. दैट इज अगेन नॉट गुड मैनर्स. ओके, सो देन लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अ fork and knife. Okay, so generally the setup is like this. So you have a, so let me stop the PPT and share my camera. Generally this is the knife and this is the fork. अब इसमें there are two ways, but the most practiced way I would like to share it with you. This is the table mat, and then now first point is you have to hold the fork in this way so that your finger is always on this point, and the knife should be held in this way that your index finger is like this. नाइफ को हमेशा राइट हैंड में लेते हैं, फोर्क को हमेशा लेफ्ट हैंड में लेते हैं. इसका पर्पस ये होता है कि काटने के लिए जो एनर्जी लगता है, मोस्ट ऑफ अस आर राइट हैंडेड, सो इट हेल्प्स इन कटिंग इजीली. द बेस्ट वे टू कट इज आपको आपका नाइफ इसके अंदर आप डालिए एंड देन जस्ट ट्राई टू कट इट. दिस इज हाउ यू कैन कट एंड देन मेक इट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. So I have cut one piece. Now again I'm going to be just cutting it into another piece. Okay. Now, okay, just zoom it out please. Yeah. There you go. और थोड़ा सा पीछे लीजिए please. Okay, no problem. Just lift it. Yeah, it's not so clear. Yeah, fine. So now you have been able to pick it up and then just put it in your mouth. When you are eating, let me just give a minute please. Shall I change the camera? Yeah, okay. Normal. Let it be normal. So, my dear friends, सबसे important बात होती है, मुंह में at a time ज्यादा नहीं भरना चाहिए. It is very very disrespectful and disgraceful when you feed too much in your mouth, especially when you are having some business lunches or business dinners, you are at a social gathering, and if you have to talk in between, make small bites and then eat it. Try not to speak while eating. Chew it fast and then speak. Let's take for example, now I have done a small piece. I would still like to make it still smaller piece, and then just take it up. This is how you are able to eat and talk. If you feed too much things, it won't work. So let's practice again. Knife
in your right hand, index finger, fork in your left hand, this finger, then, hey, stop. Not enough. Okay, no problem. Okay, so then we have, let me just switch the camera, just give me a minute. Okay, that's fine. No problem, you have a backup. Sure. ओके चलिए तो देखते हैं, ये था अपना प्लेट. अब इसको हमने इस तरह से देखा. वी हैव अ स्मॉल बाइट. ओके, जस्ट पिक इट अप इन दिस वे. और एक ध्यान ये रखना है, जब आप उठाते हैं, थिंग्स शुड नॉट कीप फॉलिंग ऑल अराउंड, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका खाना हो जाता है तब आपको आपके फोर्क एंड नाइफ को ऐसे क्रॉस करके रखना चाहिए होता है. क्रॉस का मीनिंग है कि आपका खाना खत्म हो गया है, प्लेट उठाई जा सकती है. अगर आप फूड को रीऑर्डर करना चाहते हो और यू आर वेटिंग फॉर द फूड टू कम, देन you have to keep your things straight like this. This is the way how it should be in a straight format. Okay, now let's look at the next step and then go forward. ओके, सो अभी हमने देखा कि नाइफ और फोर्क को कैसे यूज करते हैं. थैंक यू प्लीज. नाउ नाइफ और फोर्क एंड स्पून को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी देखते हैं. टिपिकली जब हम डोसा खाते हैं या उत्तपम खाते हैं, उस समय वी यूज द फोर्क एंड स्पून. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. अब मैं आपको आई जस्ट शो यू दी Okay, so let's look at it. Again, fork is always in your left hand. Okay, you have the spoon. What you need to do is just आप इसको ऐसे डालिए और इसके हाथ से आप इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं. देखिए, इस तरह से आपको काट के छोटा छोटा पीस बनाना है और फिर इसको आप इसमें ऐसे रख के you can add some of your chutneys or gravies and things like that, and then take it. Wow, very good uttapam. But anyway, मैं आपको बता रहा हूँ, just take this, put it here, drag it with this spoon, same way, put it here, drag it with this spoon, bring it out, then let's dip it. Let's dip it inside, and then you can just take it like this. Wow. So this is the way, right way to have an uttapam or something similar with a fork and a spoon. एक ध्यान से देखिए, जहाँ पे बड़ी चीजें काटनी होती है we use a knife, but then अब इंडियन फूड में जनरली दे आर accompanied with some or the other additions, जैसे चटनी हो, सांबार हो. इस पर्पस के लिए we need the spoon. तो ये अपना डेमो दिखाने का पर्पस भी यही था कि जब आप ऐसा कोई फूड खा रहे हैं तो यूज अ फोर्क एंड अ स्पून एंड देन दैट विल हेल्प यू. जस्ट सिंपल, यू आर एबल टू कट, मेक इट लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो रैप इट लाइक दिस, पुट इट लाइक दिस, एंड देन यू कुड जस्ट डिप इट लाइक दिस एंड देन टेक इट अप. यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, ऑलवेज हैव इट इन दिस वे. I hope this is clear now to everybody. Yes or no, dear, all of you. एक बार हाथ ऊपर उठाइए सब लोग. I can see you all in my cameras. Wonderful. We have really a lovely audience. Great. Thank you so much. Now let's go forward for the next step. One important thing that I forgot to tell you is about the usage of
salt and pepper. There is a system in which salt and pepper has to be used. Okay, so let's look at how do we use salt and pepper. I have two of these beautiful things with me, which is salt and pepper. So the one that has got more holes, okay, is meant for salt, and the one that has got lesser holes is meant for pepper. Okay, so one common mistake that everybody does is if somebody asks for salt, it is always a good manners to pass both of them to the person requesting it. एक ही नहीं देना चाहिए, या तो एक ही चीज को कभी नहीं देना चाहिए, दोनों को साथ में मिलकर देना चाहिए. दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल दैट इज फॉलोड. नेक्स्ट, अब एक चीज हम कॉमन मिस्टेक क्या होता है, अब मान लीजिए मेरे नेबर ने पूछ लिया कि कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो उनको देने के पहले हम अपने प्लेट में डालकर देते हैं. दिस इज वेरी बैड. यू शुड नेवर डू दैट. जब उन्होंने मांगा तो पहले आप उनको दे दीजिए, फिर उनका होने के बाद वापस लेकर आप इस्तेमाल कीजिए, बट इन बिटवीन आप इस्तेमाल करके देना ये अच्छा नहीं होता है. ओके, सो ऑल ऑफ यू, होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सॉल्ट एंड व्हाट इज पेपर. जिसमें ज्यादा होल्स हैं वो सॉल्ट होता है, जिसमें कम है वो पेपर होता है. आपको उसी तरह से इसको डालना है एंड देन मेक यूज ऑफ इट. कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो सीधे सीधे दोनों भी पास करना है, एंड देन यू शुड ऑलवेज put in such a way that it should go as a combination. Okay, चलो तो आगे बढ़ते हैं. Now let's go forward for the next one. Okay, so here we go. We have seen eating with this fork, spoon. We have practiced. I request you to practice yourself again and again. कई बार फर्स्ट शॉट में नहीं भी हो सकता है, बट सेकंड शॉट में हो सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है. ओके, एक दो बार करोगे तो आ जाएगा, और जब आएगा आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि हाउ सिविलाइज्ड यू लुक, हाउ गुड यू प्रेजेंट योरसेल्फ अमॉन्ग अदर्स. So that is the importance of having food appropriately. Okay, now let's look at the next thing. जैसे मैंने बताया, take small bites, chew and अच्छा, एक और common चीज, जब हम खाते हैं तो अपना मुंह को खुला नहीं रखना चाहिए. This is not right. You have to close your mouth and eat. This is the correct way to eat. Okay, and try to avoid talking when your food is in the mouth. Okay. देन जैसा कि कोई मांग रहा है तो ऐसे उठ के किसी के प्लेट के ऊपर से चढ़ के कोई चीज नहीं लेना चाहिए. जस्ट रिक्वेस्ट देम, कुड यू प्लीज पास दैट सब्जी टू मी, और कुड यू प्लीज पास रोटी टू मी, समथिंग लाइक दैट. किसी के ऊपर गिर के उसको लेना बहुत ही डिसग्रेसफुल माना जाता है. नाउ वी हैव नाउ, ओके, सो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, okay, when you leave the table, okay, make sure that you keep your napkin loosely placed on the side as I had mentioned. Okay, and you can also one more important thing, when you are sitting together for a meal, आपका खाना अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो you should not get up. You have to wait until the last person finishes. So this is very important, so that you appropriately gel well with the group, and then it gives a feeling of equal respect. Okay, then let's understand about noodles, and then we will come back to the soup. Noodles, सभी लोग तो खाते होंगे noodles. Everybody must be liking noodles, right? Isn't it? Yes or no? Very good. So let us understand how to eat noodles. Okay, so now let me just share the camera, and then I'll show you how to eat noodles. Can you please make this as the spotlight? Okay, wonderful. Great. The best method to eat is, there are actually two ways. One is using a chopstick, but that is relatively less used in India. Okay, but typically we follow a fork. Okay, ideally speaking, you dip the fork in this one, rotate it, and then get it. But जब आप लेते हो तब ये लंबी लंबी धार निकलती है,
जब खाते हो तो ऐसे लंबे लंबे धार मुंह से निकलना नहीं चाहिए. इट इज वेरी it doesn't look good. It looks impolite while you're eating like this, and things coming out. Just look at it, how it looks. अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, राइट? लेट मी शो यू. जब आप लेते हो, कई बार आपके नूडल्स अगर बहुत बड़े होते हैं तो यू हैव टू टेक दिस, लिफ्ट इट अप, put it, hold it in a spoon, and then probably you can do it like this, and then put it in your mouth. How was that? पहला वाला अच्छा लगा या बाद वाला अच्छा लगा? चैट में रिप्लाई दीजिए मुझे. स्टेप 1 और स्टेप 2, which was good? स्टेप 2, वेरी गुड, दैट्स राइट. सही है कि नहीं? सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. छोटी छोटी चीजों में देखिए कितना फर्क पड़ता है कि नहीं. पूरा नजरिया ही बदल गया. पहले ऐसा लग रहा था कोई आदमी 8 दिन से भूखा है आके खा रहा है, बट वही थोड़े दिन थोड़ी सी चेंज किया और तहजीब इसी को कहते हैं, और उसको ध्यान से खाया तो इट लुक्ड सो गुड, सो पोलाइट, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं. हाउ टू ईट राइस. ओके, अब जनरली राइस इज अ वेरी कॉमन आइटम दैट वी ईट, सो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर. राइस के लिए we have generally you can actually take some help of the fork. The simple reason is, how do we take help is, kabhi kabhi aap say for example you are eating a biryani or you are eating some food which has got larger things in that. Okay, so that is where this fork comes into picture. aap isko dheere se uthaiye and then lift it in the spoon, and then अब आप सोचोगे कि इसका क्या काम है. जनरली जब आपका प्लेट फिनिश हो जाता है तो थोड़ा सा चीज रह जाता है, तब हम या तो हाथ से यूं 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 करना चालू करते हैं, विच इज नॉट राइट. आपको उस समय इस फोर्क को यूज करना चाहिए. ओके, एंड उस समय फोर्क में यू हैव टू हेल्प यूजिंग द फोर्क टू पुट द फूड आइटम इन द स्पून. ओके, दिस इज हाउ इट विल वर्क प्रॉपरली. When you put the, I'm just going to show again, please ध्यान से देखिए. ये मेरा fork है और ये है, and just give me a second. Okay, I think the camera is switched. You have to pin up this camera. Okay, sure, but I don't see that here. Okay, I'm seeing this camera. No, just see the basic. Yeah, okay, this is good now. Thank you very much. Okay, so look at this. So this is the spoon, this is the fork. Okay, I'm taking the spoon like this. I'm using the fork to put some rice on this one. Okay, ये जब प्लेट अभी तो भरा हुआ है, बट जब प्लेट खत्म होके जब लास्ट का चीज बचता है, that is when this is very helpful. So let's take it like this. This is the way. Can I request for one plate, please? मैं आपको लास्ट बाइट भी कैसे खाता है वो भी दिखाता हूँ, so that you will come to know. Let me just, I'm just going to put, मैं सिर्फ 2 निवाले इस प्लेट में रखूंगा, and then I will show you how. अब ऐसा मानकर चलिए आप कि अब ये मेरा खाना खत्म हो गया है. I am on the last plate, so this is how it works. Got it? See, I'm just cleaning it using this. I'm going to be putting it, and then, और एक चीज याद रखना है, खाना होने के बाद में स्पून और प्लेट को क्रॉस रखना है. अगर स्ट्रेट रखोगे तो क्या होगा, वेटर समझेगा कि आप अभी खा रहे हो, और क्रॉस रखोगे तो वेटर आपका प्लेट उठाकर लेकर जाएगा. So these are some of the systems that have been defined. And then, so now let's go forward with the next step. Okay, I hope all of you are enjoying so far. We have some more very, very interesting things. Noodles देखा हमने अभी. अब let's understand how do we take juices, soft drinks and burger. Okay, अब typically क्या होता है, मैं पहले बर्गर के ऊपर आऊंगा और फिर उसके बाद में आप लोगों को जूस के बारे में बताऊंगा. बर्गर जनरली एक ब्रेड रखते हैं उसके ऊपर, then we have, so let me just stop here and show you on the camera.
बर्गर में एक छोटा ब्रेड होता है, उसके ऊपर आपके अलग अलग टॉपिंग्स होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरह के सॉस डाले जाते हैं, एंड देन यू हैव वन मोर बर्गर ऑन टॉप. देयर इज अ टूथपिक दैट इज इंसर्टेड टू कीप दैट इंटैक्ट. अब एक चीज थोड़ा सा सोचने वाली बात यह होती है कि सब कुछ रख के यूं 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 डाला जाता है, धीरे 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 वो नीचे गिरना शुरू होता है. जब हम बर्गर को उठाकर खाते हैं तो भी हमारे इधर या इधर गिरना शुरू हो जाता है, एंड इट डजंट लुक गुड. इसके लिए क्या करना होता है, अब इसमें दो चीजें और होती है कि किसी को केचप लगाना है या कोई सॉस भी लगाना होता है. उस समय देयर आर टू मेथड्स. वन इज लिफ्ट द टॉप ब्रेड, अप्लाई योर केचप ऑन टॉप ऑफ इट, पुट इट एंड देन ईट. तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है. बट चलो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भी आप सैचेट्स यूज कर सकते हो, कट करके इसके ऊपर एक एक दो दो ड्रॉप डाल के आप खा सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल ईटिंग अ बर्गर इज, आप बर्गर को लिफ्ट कीजिए और उसको उल्टा करके आप खाना शुरू कीजिए. उल्टा करके जब आप खाते हैं तो उसके जितने भी चीजें जो नीचे गिरने की कोशिश कर रहे थे वो वापस से बर्गर के अंदर ही जाते हैं, एंड दैट एड्स टू अ बेटर अरोमा, बेटर टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. आज कुछ ये गड़बड़ की वजह से हमारे पास बर्गर नहीं था आपको डेमो दिखाने के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, एंड अप्रिशिएट दैट. Thank you so much. Now let us look at how do we go for a cold drink. अब मानकर चलिए, see these are the glasses used for typically a cold drink or a mocktail or any of that. इस ग्लास को एक साइंटिफिक रीजन की वजह से बनाया जाता है. ऐसे वाले ग्लास को सही तरह से पकड़ने का तरीका यहाँ से नीचे होता है. उसका रीजन ये होता है कि यू कुड हैव समथिंग रियली चिलिंग और वेरी कोल्ड, तो उसको आप ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए. ऐसे पकड़ोगे तो इट इज नॉट गुड. You should always hold it from the bottom and then sip it. Okay, again जब sip करोगे तो उसमें आवाज नहीं आनी चाहिए. अब स्पेशली जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व करते हैं, ओके, जब हम सर्व करते हैं तो एक दो चीज का ध्यान रखिए. कोल्ड ड्रिंक हमेशा ठंडा होता है, गैस भरी होती है, तो व्हेन यू रिमूव दिस थिंग, ऑल ऑफ ए सडन द गैस कम्स आउट. तब सीधा अगर डालने जाते हो तो वो गिर के जाने का चांसेस होता है. The best way is hold the glass in a cross direction. Start putting this in a slow manner and then you keep it straight. So this is how it works. इससे क्या होता है कि आपका प्लेट, आपका टेबल, it remains hygienic, कहीं गिरता नहीं है, and then you can enjoy your drink. Just hold it like this and then have a sip. This is the way. ये बहुत छोटी चीज होती है बट इंपॉर्टेंट होती है. अब ये ग्लास को ऊपर क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, ये इसको मैं आपको एंड में एक डेमो करके दिखाऊंगा, उसके रीजंस क्या होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट. ओके, चलो, सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन. So we saw how do we hold a burger and the juice, and then हमने देखा अभी we have just a few more slides left. Desserts, ice creams, banana and fruits, इसे हम किस तरह से खा सकते हैं. Let us look at that. अभी जनरली एक चीज क्या होता है कि फोर्क दो तरह के होते हैं. ओके, फोर्क में एक बड़ा फोर्क होता है और एक छोटा फोर्क होता है. बड़ा फोर्क खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटा फोर्क डेजर्ट खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. टिपिकली जब आपके पास में आइसक्रीम, गुलाब जाम या फज हो, फज का मतलब केक होता है, केक के साथ में आइसक्रीम रखा जाता है, तो ऐसे चीज़ों में जब आप इसको यूज करते हैं तब हमें छोटा सा फोर्क रखना होता है. दिस इज अ स्मॉल फोर्क. देखिए, सो दिस इज द स्मॉल फोर्क. तो ये छोटा फोर्क होता है और एक इसके साथ में, अब देखिए आई जस्ट शो यू अ कंपैरिजन. ये बड़ा फोर्क है, ये हमने पिज्जा खाने के लिए, उत्तपम खाने के लिए इस बड़े फोर्क का इस्तेमाल किया. ये छोटा फोर्क होता है स्पेशली फॉर आइसक्रीम्स या फज या ऐसा कोई छोटा सा फ्रूट प्लेट हो, उसमें इस चमचे का इस्तेमाल किया जाता है. तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज कब कैसे खानी चाहिए.
So now let's look at having a dessert. किस तरह से हमें dessert खाना चाहिए, and then we will come to the next thing. Okay, so I have some really interesting dessert coming up. Just wait. Okay, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. अब देखिए, this is a dessert bowl. अब एक चीज आपको खास दिखाना चाहता हूँ. ये एक जो चम्मच है, okay, this is specially designed for ice creams. Okay, ये चम्मच होता है नीचे की तरफ फ्लैट होता है. इसका पर्पस कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी हुई है. अब जैसा ये देखिए, ये जो पोर्शन है, अब एक नॉर्मल स्पून है, अब ये नॉर्मल स्पून है, इसमें ये एंड टेपर्ड होता है. ये होता है मुंह में डालने के लिए, ये भी होता है उसी के लिए, बट इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप आइसक्रीम को कट अच्छी तरह से कर सकते हैं. लुक एट दिस. सी व्हेन यू इंसर्ट इट लाइक दिस, you can cut it and then eat it. This is the purpose of this small. अब मानकर चलिए अभी इसके साथ में कोई गुलाब जाम होता या अगर कोई फज होता, तो we use this to hold the fudge और उसके साथ में इसको रख के ऐसे काटना चाहिए. आप जब डिजर्ट जो डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है, इसका पर्पस ये होता है कि जब आप खाते हो तो आपको एक हॉट और एक कोल्ड या एक सख्त और एक सॉफ्ट चीज एक साथ मिले, उसी लिए इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है. लेट्स टेक. अब देखिए, ये फोर्क को मैंने इसमें डाला और देन मैंने इसको इससे कट किया, एंड देन आई कैन स्टिल यूज द फोर्क टू फिल अप माई स्पून. अगर कोई चीज मुझे जरूरत हो या कम ज्यादा हो रहा है तो आई कैन डू दिस एंड देन eat this one. So this is how we take this one. Now let me show you something very common. What is this? Banana, right? Everybody is aware of banana. अब common mistake banana खाते समय क्या करते हैं सभी लोग? So we have to peel out only as much as we need to eat. ये एक ध्यान रखिए. सभी लोग अक्सर पूरा निकाल देते हैं, which is wrong. आप जैसे जैसे खाओगे वैसे वैसे इसको निकालते जाइए. As you eat, you remove. You eat, you remove. Okay? And then when you come towards the end, let me just show you something. इस तरह से आप खाते जाओगे, and then you come towards the end. I'm just going to show you. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केला खाने में सबसे लास्ट वाला आइटम. तो इसमें आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ, नेचर ने इसको बहुत सोच समझ के बनाया है. ये जो नीचे का पोर्शन होता है, इसको आप इस तरह से आपकी उंगली में ऐसे पकड़ के आप इसको जब आप नीचे से धीरे से प्रेस करेंगे तो दिस विल कम आउट वेल. आपको कहीं पर भी हाथ लगाने का जरूरत नहीं है. दैट्स इट. विथ वेरी क्लीन हैंड्स, without any spillover, you can do this one. और एक मैनर्स आपको ये रखना चाहिए कि केले का छिलका हमेशा एक ढंग से कॉर्नर पे रखिए ताकि किसी के बीच में ना आए. ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम कॉमन मिस्टेक व्हाइल ईटिंग मैंगोस. सबको मैंगोस तो पसंद है, राइट? यस और नो? करेक्ट. अब जनरली जब हम मैंगोस खाते हैं, ओके, आई एम अ बिग फैन ऑफ मैंगो. आई रियली लव मैंगोस. बहुत अच्छा लगता है मुझे आम खाना. अब देखिए, अब ये आम को इतना प्यारा प्यारा आम है, इसको इतना अच्छा कट किया है. अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव सीन और ऑब्जर्व, लोग इसको ऐसे रख के खाते हैं. अब इसमें क्या होता है, आप आपके ऊपर के दांत से इसको निकालने जाते हो, यहाँ से गिरने का चांस होता है. तो आइडियली स्पीकिंग सबसे सही तरीका इसको ऐसे उल्टे रखिए, ऐसा लीजिए. अगर एक्स्ट्रा भी आता है, यू कैन जस्ट फोल्ड दिस, इन्वर्टेड. नाउ खाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरली सभी लोग इसको छिलके को ऐसा ही रखते हैं. दिस इज नॉट गुड. आपको आपका छिलका उल्टा रखना चाहिए. हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे दांत में छेद है या नहीं है, बहुत अच्छे दांत हैं या आगे पीछे दांत है. आपके दांतों के निशान इसके ऊपर आ जाते हैं, छिलके के ऊपर.
तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू शो इट. सो सिंपल चीज होती है, खाना होने के बाद में इसको उल्टा ढक के रखें. तो समझ में आ रहा है सभी को? अग्रीड? एक बार हाथ हिलाइए सभी लोग. चलो तो एक और आम खाकर देखते हैं. लेट्स लुक एट इट. एक सिंपल चीज मैं ले रहा हूं. ये मैंने इधर इसको उल्टे रखा. देखिए, सी यू कैन मेक आउट द डिफरेंस, हाउ मच डिफरेंट. अब यही चीज अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो इट लुक्स लिटिल बिट शाबी. यही सेम चीज है, सिर्फ इसको उल्टा रखना है. फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू, वी जस्ट नीड टू चेंज स्मॉल थिंग्स. ये छोटी छोटी बातें, इसीलिए इसका नाम रखा है छोटी छोटी बातें. ओके, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं. वी गो हेड विद द नेक्स्ट वन. वेरी गुड. अभी भोजन तो हो गया, अभी ये भी किया. एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम जब कहीं होटल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वी आर गिवन सम टिश्यू पेपर्स. ओके, जनरली लोग टिश्यू पेपर को बहुत ज़्यादा अनवांटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड. ओके, और चलिए इस्तेमाल भी किया कोई बात नहीं, लेकिन ना उसको बहुत जगह से लोग फेंक देते हैं. तो योर टेबल लुक्स सो मेसी, सो डर्टी, यू नो इट. तो मानकर चलिए आपने आपका डिनर खत्म किया और जस्ट आप स्टेप आउट किए, कोई आकर अगर वही टेबल देखता है तो ही विल फील रियली इरिटेटेड. ओ माय गॉड, क्या मेस हुआ है, कैसा खाया है. वही चीज अगर साफ सुथरा रहे, टिश्यू पेपर्स भी अगर उसी में रहे, तो बहुत फर्क पड़ता है. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट. अच्छा, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाय. सभी लोग चाय या दूध तो पीते ही होंगे, राइट? तो अब हम देखते हैं, ये एक छोटा सा सेटअप है. दिस इज अ कवर टू कीप द टी हॉट. तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस एंड कीपिंग इट असाइड. अब ये मेरा कप है. आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस वन ऑन अ साइड, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा. अब ये मैंने मेरा कप लिया. ओके, एंड देन आई हैव अ स्पून फॉर मिक्सिंग. देन दिस ऑलवेज इज केप्ट ऑन द साइड. ओके, I pick up my tea. Right now I'm going to make a tea with a tea bag. चाय की पत्ती मतलब वो सैचेट के साथ बना रहा हूँ. तो इसको देखिए, कभी भी सर्व करते समय पहला रूल होता है कि इसके ऊपर हाथ रखें, और रखकर ही आपको इसके लिए इसको सर्व करना होता है. ये ध्यान रखें इसका. कई बार हम जोश में इसको भूल जाते हैं, ये कहीं इधर उधर गिर जाता है. उसके लिए इट इज ऑलवेज गुड टू होल्ड इट लाइक दिस एंड गिव इट. ओके, नाउ अब कई जगह पे डायरेक्ट चीनी डाल के आ जाती है चाय, कई जगह पर शुगर क्यूब्स होते हैं. ओके, तो शुगर क्यूब का मतलब छोटा सा एक शुगर का क्यूब होता है. इसको आपको उठा के अंदर तक रख के इसको छोड़ना है. कई बार ऐसे होता है कि आप इसको लेकर ऊपर से डाल देते हैं तो थपाक के चाय बाहर गिर जाती है. दिस इज अगेन अ रॉन्ग थिंग. अब जस्ट देखिए आप एग्जाम्पल. अब मैंने जल्दबाजी में इसको डाल दिया, ये देखिए इस तरफ बाहर उड़ के गिर गया मेरा. तो ये नहीं गिरना चाहिए. इसीलिए वी जस्ट हैव टू चूज इट, पिक इट अप, अंदर तक लेके फिर उसको छोड़ना चाहिए. दैट इज द राइट मेथड टू यूज अ शुगर क्यूब. ओके, देन वी हैव आवर टी बैग्स. ओके, टी बैग्स को हम इसके अंदर डिप करते हैं. अब ये डिप करने का एक लॉजिक होता है. अब जब आप आपके पतीले में चाय बनाते हो तो सभी पूरे सबकी चाय एक जैसी बन जाती है. डिप चाय का बेनिफिट ये होता है कि आप जिस तरह से आप उसको डिप करते हो उसकी जो सीवियरिटी होती है, इसका मतलब वो जो चाय का जो अर्क होता है वो पानी में घुलते रहता है. जैसा जैसा समय बीतता है वैसा वैसा ये ज्यादा चाय स्ट्रांग होती जाती है. तो इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको लेने के बाद यूज योर स्पून. ओके, एंड देन जस्ट वंस यू हैव डन इट, इसको एक बार साइड में इस स्पून को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो ये एक तरफ रह जाता है. अगर आपको ज्यादा स्ट्रांग चाय नहीं चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कीप दिस, रिमूव दिस एंड देन कीप इट इन योर सॉसर. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब जब ये आपकी चाय बन गई, ओके, नाउ व्हेन यू हैव, टिपिकली अपने यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम चाय पीते हैं तो उसकी चुस्की लेते हैं. स्वाद लीजिए चाय का, आनंद लीजिए, लेकिन आवाज मत कीजिए. अब देखिए एक बार, ये एक कॉमन मिस्टेक होता है. हर कोई जब भी चाय पीता है तो उसमें फुर्की लगा के चाय पीता है. दिस इज एक्चुअली वेरी बैड मैनर्स. हमें पॉलिश्ड बनने के लिए
चाय को भी बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह से पीना है। आप चाय का लुत्फ उठाइए, उसका मजा लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन एक ढंग से लीजिए। अब देखिए ये चाय है, मेरी चीनी भी घुल गई इसमें। अब मैं इसको, कैसा लगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला? व्हाट वाज गुड? बताइए, चैट में जवाब दीजिए, फर्स्ट और सेकंड। Very good. I have really fast people listening to me. I am really proud of my audience. Wonderful boys and girls and all elderly people. Great. Thank you so much. चाय भी बहुत बढ़िया बनी। अब हम आगे चलेंगे और अभी धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम को एक नए मोड पर लेकर जा रहे हैं। And then let's look at our हमने अभी जामुन देखा, फ्रूट्स देखा, मैंगो स्लाइसेस देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है टूथपिक का। अब कई बार, लेट मी अगेन कम बैक एंड देन शो यू, टूथपिक में इशू क्या होता है, कई बार अटकता है खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग रॉन्ग, ओके। अब टूथपिक को लोग क्या करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं, दिस इज वेरी बैड। एक्चुअल टूथपिक यूज करने का तरीका ऐसे होता है, आप आपका लेफ्ट हैंड आगे रखें और इस टूथपिक से आपके मुंह में या दांत में जो भी फंसा हुआ है आप उसको निकाल सकते हैं। दिस लुक्स मच मोर ग्रेसफुल जब आप कहीं पर रहते हो तो। ओके, चलिए मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ इसको। देखिए नॉर्मल होता है, यूं करते बैठते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं। कई लोग तो यही कान में भी डालते हैं। इट इज़ रियली बैड। मुझे तो झटका लग जाता है वो देखते ही। बट खैर ये हम करते हैं, बट इसको सही तरीका ये होता है, आपका हाथ आगे रखें और take it out. This is the right way to use a toothpick. Okay, so I hope everyone understands. Okay, then let's come to the next part now. Okay, let's see what are the common mistakes that we do. Okay, now before that let's talk a little bit about the finger bowl. Generally अपना खाना होने के बाद में we go with a finger bowl and okay, अब let's see how do we use finger bowl. finger bowl का पर्पस होता है एंड में हाथ धोने के लिए। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, जिस तरह से आप वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं ना, उस तरह से इसको नहीं धोना है। कई लोग एकदम दोनों हाथ से यूं यूं धोना शुरू करते हैं, दैट इज नॉट राइट। सही तरीका ये होता है, इसमें आपके पास एक कॉटर प्लेट रहेगी, एक बाउल रहेगा, उसके अंदर जनरली एक नींबू होता है, कई जगह पे एक आधा फ्लावर भी रखते हैं। उस फ्लावर को आपको निकाल के बाजू में नहीं रखना है, इट इज पुट फॉर सम फ्रेग्रेंस और फॉर सम जेंटलनेस। अब आपको आपके हाथ को थोड़ा सा इसमें डिप करके यूं 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 करके करके इसको आपको आपके हाथ को साफ करना है। एक पहले कीजिए, फिर उसको आपके नैपकिन से क्लीन कीजिए। ओके, देन अगेन यू डिप योर सेकंड हैंड, देन क्लीन इट लाइक दिस एंड देन आप उसको साफ कीजिए। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज अ रियल स्टोरी अबाउट द फिंगर बॉल। देखिए ये जो तहजीब होती है, ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपना इम्प्रेशन अच्छा बने, अपने बारे में अपनी जो एक प्रतिमा बनती है वो अच्छी बने, प्लस सामने वाले को आप उतना ही आदर और रिस्पेक्ट दें। अब ये कहानी है क्वीन विक्टोरिया की, अर्ली 1900s की बात है, जब क्वीन विक्टोरिया अपने बग्गी में बैठ के कहीं जंगल में से गुजर रही थी एंड देन एट दैट टाइम शी फेस्ड अ प्रॉब्लम, और कुछ भयंकर प्रॉब्लम हो गया, और उस समय उसके एक गांव के किसान ने उसकी काफ़ी मदद की। कहीं गाड़ी फंस गई, कहीं कुछ हो गया, तो उसने बहुत मेहनत करके रानी को सही सलामत हिफाजत से बाहर निकाला। अब रानी ने सोचा कि चलो भाई इसके आदर में किसको शाही भोजन दिया जाए, तो उसने उसको न्योता भेजा, वो भी खुशी खुशी आ गया। अब हुआ ये, उसको तो वो तो एक सादा सीधा किसान था, अब इतना बड़ा शाही डिनर, इतने सारे खाने, इतने सारे लजीज आइटम, अब कैसा करे, क्या करे। तो तब उसने कि देखा अब सब खाना हो गया, अब उसको पता नहीं था फिंगर बोल क्या है, तो उसको लगा नींबू है, पानी है, तो उसने नींबू को निचोड़ के पानी पी लिया। अब ये तो बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब उसको तो पता नहीं। अब रानी ने सोचा कि अरे ये इसने गलती की। अब
इस समय रानी ने बहुत अच्छा काम किया। रानी ने भी उस नींबू को उसमें निचोड़ा और वो पी गई। ये क्यों किया उसने? क्योंकि अगर वो उसमें हाथ धोती तो उस आदमी को गिल्ट फीलिंग होता, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गलत किया, रानी के इसमें आके ऐसा करके किया। अब उसका ऑब्जेक्टिव ही इतना था कि उस आदमी ने उसकी मदद की थी, तो उसके लिए वो आकर उसका सम्मान करना चाहते थे, और ऐसे समय इन छोटी चीजों से उसका निरादर ना हो, इसीलिए उसने किया। तो ये खैर एक छोटी सी बात थी। देन वी हैव, हाँ नाउ अब हम आपको आगे बताएंगे सौंफ के बारे में कैसे चलता है। एंड हाँ यस, अब एक और चीज मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। कैन आई हैव द राइस प्लेट प्लीज? थैंक यू सो मच। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब हम चावल खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखना होता है कि जो आपकी उंगली होती है, ये नेल्स के ऊपर ये जो फर्स्ट लाइन होता है ना, आइडियली आप जब खाना मिक्स भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका हाथ इस लेवल से ऊपर झूठा नहीं होना चाहिए। आप जब खाना खाते भी हो, डोंट पुट योर फिंगर राइट इन द सेंटर लाइक दिस इन द आइटम, जस्ट प्लेस इट जेंटली, स्टार्ट ईटिंग इट फ्रॉम अ कॉर्नर। जैसे आपने ये किया, ऐसे लीजिए, छोटा छोटा निवाला लीजिए, ये कीजिए, बट ये आपके हाथ को इधर तक नहीं आना चाहिए, इट शुड बी बिलो द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। ओके, अब ये हो गया। नाउ लेट्स लुक एट वन लास्ट थिंग, सौंफ। अभी अक्सर हमने देखा है जब होटल में जाते हैं, सौंफ और एक चमचा रखा होता है। जनरली सभी लोग इसको हाथ से ही लेकर खाते हैं, कई लोग तो इसको लेकर डायरेक्ट मुंह में डालते हैं। दिस इज नॉट गुड। आपको चम्मच दिया हुआ है, चम्मच से लीजिए और हाथ पे डालिए एंड देन ईट इट। एक और चीज भी हमें ध्यान रखना है, सौंफ को सौंफ की तरह से ही खाना है, चूड़ा समझ के नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोगों को देखा गया, अरे फ्री है, हमने पैसा दिया है तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। ये सब मत कीजिए प्लीज, ये बहुत ही गलत चीज है। इट इज गिवन एज अ माउथ फ्रेशनर, तो आपको यहीं पर जितना लगता है उतना आप ले लीजिए सफिशिएंटली, बट डू नॉट कैरी इट विथ यू। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू। जब आप खाना खाते समय मोबाइल रखते हो तो ट्राई टू प्लेस इट इन सच अ वे दैट इट शुड बी नेक्स्ट टू योर टेबल। जब आप खाना खाते हो उस समय यूं यूं करके उठा के निकाल के रखने की जरूरत ना आए। लेडीज के लिए अपने पर्स में ऊपर के खाने में रखें ताकि जब चाहे तब मिल सकता है। एक और चीज, एक छोटा सुझाव है, अभी सबके व्यक्तिगत मत अलग होते हैं, बट मोबाइल का वॉल्यूम कहीं आप एक कोई मानकर चलिए किसी के कोई गुजर गया है, आप उनके सांत्वना के कार्यक्रम में गए हैं या उठमने पर गए हैं और एकदम शांत माहौल है, मासूम और उदासीन माहौल है, और एकदम से आपका फोन जोर से बज जाता है, इट बिकम वेरी ऑकवर्ड। तो ऐसी परिस्थिति में सभी को वो ऑकवर्डनेस फील होता है। उसके लिए जनरली मोबाइल को आपका जो रिंगटोन जो भी आप रखो, इसमें एक तो वाइब्रेटर मोड ऑन रखना चाहिए, और रिंगटोन में एक ऐसा इंक्रीजिंग मोड होता है जिसका मतलब ये होता है कि पहले तो फोन थोड़ा वाइब्रेट होगा और धीरे धीरे आपका रिंग बढ़ते जाएगा, उसकी आवाज बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर मानकर चलिए आप पास में ही फोन है तो एकदम धीरे आवाज में ही आपको पता चल जाता है कि मेरा फोन आ गया है। अगर कहीं दूर पर भी रखा हो तो एक 3-4 रिंग के बाद आपको सुनाई देता है, लेकिन एटलीस्ट तब तक किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें सभी लोग कि उसको आप एक इंक्रीजिंग मोड में रखना चाहिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, अच्छा अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि कभी भी कोई भी आप होस्ट हो या गेस्ट हो, ओके, से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। अंग्रेज आकर चले गए लेकिन उन्होंने एक ही काम बहुत अच्छा किया, अपने लोगों को 2 शब्द देकर गए, एक सॉरी और एक थैंक यू। रियली ये दोनों वर्ड्स बहुत कमाल की चीज है। बिलीव मी, सही समय पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग आपको बहुत तरक्की देगा, बहुत शांति देगा, बहुत सुख देगा। सही समय पर सॉरी और सही समय पर थैंक यू, ये 2 शब्दों का अगर इस्तेमाल करना हम सीख जाते हैं तो जीवन बहुत ही आनंदमय और मंगलमय हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट सम इम्पोर्टेंट चीज। खाना खाते समय कभी डकार आती है, ओके, जनरली it is very it is not a good manners to burp, इस तरह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए। अगर कभी आता भी है
यूज योर नैपकिन, इस तरह से। तो वो आवाज यहीं पर दब जाती है, उससे किसी को भी परेशानी नहीं होती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब कई बार पेट खराब हो, कुछ प्रॉब्लम हो, गैसेस भी आ सकते हैं, तो ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सब लोग साथ में बैठे हैं, आपको एकदम गैसेस हो जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू, और वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। ऐसे समय जस्ट से एक्सक्यूज मी प्लीज, और आप बाजू जाइए, यू कैन पास एंड देन कम बैक एंड सिट। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द कोरम of that particular environment. I hope everybody is understanding. चलिए, अभी हमने देखा सोप का, देखा टिश्यू पेपर्स भी बहुत ज़्यादा स्पॉइल मत कीजिए। और एक चीज कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड नेवर बी, आपको प्लेट में कहीं पर भी खाना, प्लेट में आपको हाथ नहीं धोना है, इतना ध्यान रखिए प्लीज। नेवर वॉश योर हैंड्स इन द प्लेट, ओके। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। देन आज का इस कार्यक्रम में खास थैंक्स मैं देना चाहता हूँ मिसेस रेशमा मुकेश मेहता और सारिका अभिजीत शाह, दोनों भाभीियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये इतने सारे आइटम्स जो आपने देखे, इन सब की तैयारी उन्होंने करके दी इधर, और वी कुड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो आई होप आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन के दिनचर्या में आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन ऑलवेज इम्प्लीमेंट दिस एंड सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ, ओके। थैंक यू एंड जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वन एंड ऑल। ओके, हाँ, thank you Pritam bhai. It was a very nice and learning, it was very nice and learning experience for all of us. We actually, myself, I make lot of mistakes. From today I will follow that I will not make such mistakes from this session. Thank you very much. Now I request our guest of honor, Mrs. Chanchal ji, to say a few words. Mrs. Chanchal ji. जय जिनेंद्र। छोटी छोटी बातें देखते हुए मुझे कुछ 4 लाइन सूझिए। छोटी छोटी बातें ही जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी लाती है। छोटी छोटी बातें ही जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी लाती है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन मुकाम जरूर पाती है, एक दिन मुकाम जरूर पाती है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ केतन जी दोषी और सुनील जी लोढ़ा को, कि जिन्होंने मुझे JSG गुलबर्गा टीम से मिलने का मौका दिया, और प्रीतम जी से यूजफुल टिप्स सुनने का मौका दिया। प्रीतम जी ने ना ही ओनली डाइनिंग टेबल के मैनर्स, कार्ड, टेलीफोन, हाउ टू सीट, स्टैंड, ये सब मैनर्स बताए हैं, और हमारे नॉलेज में वैल्यू एडिशन किया है। तो प्रीतम जी, मैं आपको सही में ये छोटी छोटी टिप्स आपने इतने आसानी से बताई है। मैं देख रही थी अभी, हमारे जो दर्शक है, छोटे हो या बड़े हो, छोटों ने जितना आनंद लिया उससे दुगना आनंद बड़ों ने लिया है। तो केतन जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और केतन जी एंड सुनील जी, आपके पूरे JSG गुलबर्गा को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Chanchal ji. If anybody wants to ask any questions or anyone wants to share their feedback, they can share. They can unmute themselves and they can share. Ketan bhai. सभी को जय जिनेंद्र। जिस तरह से अभी आपने 1.5 घंटे का एक प्रोग्राम का आनंद लिया, मैं जैन सोशल ग्रुप में लगभग 15 या 20 साल से जुड़ा हूँ। ग्राउंड जैन सोशल ग्रुप गुलबर्गा ग्रुप लेवल से और रीजन और फेडरेशन लेवल से।
लेकिन मुझे मेमोरी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई इस तरह से टेबल मैनर्स और एटिकेट्स के ऊपर भी एक प्रोग्राम कोई इस तरह से किया जाता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, और आपने इसको 1.5 घंटे में लगभग प्रैक्टिकली करके हमको ये बता दिया। छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा बहुत कुछ सिखा के गई है। हम भी इसमें से बहुत से मिस्टेक्स करते हैं, जैसे आपने कार का एक उदाहरण दिया था, और बहुत से टेबल जैसे सूप पीते हुए जो करना चाहिए, चाय के टाइम पे क्या करना चाहिए। ये बहुत से हम लोग भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में मिस्टेक्स करते रहते हैं, अनजाने में करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब देखने से जैसे बच्चों को तो बहुत कुछ सीखने मिला, हम जैसे बड़ों को भी सीखने मिला। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हर टाइम अगर से मैं कार में बैठूंगा और दरवाजा खींचूंगा तो मुझे इमीडिएटली प्रीतम भाई का वो टिप याद आएगा कि नहीं यार, हमको स्लोली खींचना है। भले इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी को बताना है या नहीं बताना है। ये जो सिस्टम हमारे लिए जो बने हैं वो किसी को बताने के लिए नहीं है। जैसे होटल्स में हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के बाद ही इस तरह से एटिकेट्स और बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम छोटे-छोटे आजू-बाजू में देखते हैं तो किस तरह से गंदी रीति से खाते हैं और किस तरह से जोर से आवाज से बात करते हैं, मोबाइल में एकदम अनकूथ बिहेवियर करते हैं और किस तरह से बातें करते हैं कि सारे आने वाले बाजू में जो एक इवनिंग एंजॉय करने को आते हैं, अपने लाइफ का मेमोरेबल टाइम बिताने आते हैं अपने फैमिली के साथ, उनको कितना डिस्टर्ब होता है। ये छोटी-छोटी बातें बता के जाती है। थैंक यू प्रीतम फॉर ब्रिंगिंग सच अ वंडरफुल प्रोग्राम, स्पेशली थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट डायनामिक सुनील जी and all his support staff for giving such a wonderful program। और मुझे आशा है कि इस तरह से छोटी-छोटी प्रोग्राम हम और अच्छे-अच्छे तरीके से, बड़े-बड़े तरीके से हम पेश करेंगे। और चंचल जी, थैंक्स फॉर योर टिप्स, दिव्या जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड चंचल जी फॉर योर really nice and very up to date observations। Thank you very much। We are looking forward to join with you। सबके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम अपने मित्र के साथ एक क्लास फेलो जिस तरह से हम बोलते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र रीजन में संचल जी और दिव्या जी मेरे क्लास फेलो हैं। वो एक कमेटी चेयरपर्सन है एंड ओवरसीज टूर की कमेटी चेयरपर्सन है, और हमें विदेश ये टाइम घुमाने लेके जाने वाली है छोटी-छोटी पॉकेट मनी के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू JSG गुलबर्गा। थैंक्स केतन भाई। हाँ, मुझे एक बात बोलना था कि मैंने बहुत बार सुना है अपनी मम्मियों से कि हाँ बराबर खाओ, पर मैं कभी अप्लाई नहीं करता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करना था। पहली बार मैंने किसी को देखा है करते हुए तो मुझे भी एकदम ऑकवर्ड फील हुआ जब बराबर नहीं खाते हैं। तो थैंक यू, आपने ऐसा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, मुझे बहुत थैंक यू बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आपकी दिल की बात बताई। थैंक यू। एनीवन एल्स? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। नाइफ राइट हैंड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, बताइए। राइट हैंड। यस प्लीज टेल मी बेटा। Uncle, I would like to share some words. क्या बोला आपने? अंकल, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बोलिए, आपका नाम बोलिए। I'm Shani Parmar। Thank you, Sunil uncle and Abhijit uncle and Pritam uncle for giving us such a wonderful informative session. We children knowingly or unknowingly make so many mistakes and following tables and etiquettes. Today's session was very nice and we learned a lot of things. Thank you. Thank you beta, thank you so much। Thank you। Welcome। If anybody has any questions, they can ask। Okay, we will conclude today's session। I thank all the participants
chief guest and today's speaker, Pritam Mehta, for this wonderful session. Thank you very much. Thanks, everyone. concluding sentence